Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. Today we have to discuss next topic in which we have to discuss application of Gauss's theorem. So according to NCERT book there are three application of Gauss's theorem. First one is what? Electric field intensity due to infinitely long line charge. Second one is electric field intensity due to infinitely long plane sheet of charge and next one is electric field intensity due to hollow spherical cell. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज हम जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम. ठीक है, गॉस थ्योरम की हेल्प से या गॉस थ्योरम के हमको क्या पढ़ने हैं? एप्लीकेशन पढ़ने हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, इसमें एप्लीकेशन नंबर 1 है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. पहला एप्लीकेशन क्या है? तो पहला एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to infinitely long linear charge, infinitely long line charge by application of Gauss's theorem. By application of Gauss's theorem. गॉस थ्योरम की हेल्प से हमको क्या करना है? इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज. ओके, लीनियर चार्ज है, इनफाइनेटली लॉन्ग लीनियर चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो देखिए, हाउ कैन वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेकन अ लाइन चार्ज हैविंग infinitely long towards both side, which are infinitely long towards both side. तो क्या कहा? कंसीडर a line charge, this is a line charge which is infinitely long towards both the side. ठीक है, ये क्या है? both side से this line charge is infinitely long towards both the sides. So ये हो गया one side and this one is another side. So this line charge is infinitely long towards both side. ठीक है, ये दोनों साइड से क्या है? इनफाइनेट लॉन्ग है. सो दिस इज इनफाइनेटली लॉन्ग टुवर्ड्स बोथ साइड. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी गिवन द प्लस क्यू चार्ज टू दिस लाइन देन इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ. क्योंकि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है. So now we have to consider a line having infinitely long when plus q charge is given. ठीक है, तो क्या कहा? consider a infinitely long line charge. Consider a infinitely long line. Consider a line of infinite length. Line of infinite length. When infinite length, when plus q charge is given to this line, when plus q charge is given to this line, when plus q charge is given to this line, when plus q charge is given to this line, then it will be uniformly distributed, then it will be uniformly
it will be uniformly distributed over its length, uniformly distributed over its length, over its length। ठीक है, क्या बताया? वी हैव टू कंसीडर a infinitely long line when plus q charge is given to this line, then it will be uniformly distributed over its length। now we have to determine electric field intensity due to this line charge, ठीक है, over its length। we have to determine electric field intensity, we have to determine electric field intensity, we have to determine electric field intensity due to this line charge, then for it a point P is situated, then for it a point P is situated at a distance small r from the line charge, ओके। तो इसके कारण हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, सो वी हैव टू कंसीडर अ पॉइंट P सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r from this line charge, and this is the point P at which electric field intensity we have to determine. This is the point P. Now, so to determine the electric field at this point P, so to calculate the electric field at point P, we have to consider two small charge element. We have to consider that what? Two small charge element on this line charge. We have to consider that two small, या ऐसे कर लें आप, to determine the electric field intensity at point P due to this line charge, we have to consider two small segments of charge, या two small element of charge. This is the first element having length dl and charge dq, ठीक है, and this charge is very small that it behaves like a point charge, and this is the another element situated on other side of the line, ठीक है, also having same length dl, this also having the length dl, due to which electric field intensity is to be determined। ये भी same dl length का है, and this is also having the charge dq, ठीक है। now so we have to determine electric field at point P due to this both line charge या due to this both linear charge। तो ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ से दो पॉइंट्स लिए मैंने, एक तो इसको पॉइंट P पर ये ज्वाइन करवा दिया, फर्स्ट पॉइंट लाइक दिस, ये एक पॉइंट ज्वाइन करवा दिया मैंने, एंड दिस इज द अनदर पॉइंट विच हैव टू ज्वाइन एट पॉइंट P। ये दोनों पॉइंट्स मैंने इस पर ज्वाइन करवा दिए। आप ये देखें, यहाँ पे जो सेपरेशन लेनी है वो हमको सेम लेनी है दोनों के लिए, या ये सेम सेपरेशन पे हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं। सो नाउ क्या बताया आपको? नाउ वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस बोथ लाइन चार्ज, ड्यू टू दिस बोथ सेगमेंट, ठीक है। सो दिस इज एन एंगल थीटा। अब ये सेंटर हो गया, एंड दिस बोथ दिस पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस। ये जो पॉइंट्स लिए हैं, जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, वो सेम डिस्टेंस पे हैं। सो दिस इज एंगल थीटा एंड दिस थीटा होगा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है। तो क्या बताया? वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, देन फॉर इट अ पॉइंट P is situated at a distance small r from the line charge, ठीक है। सो now we have to consider two small element, क्या कहेंगे? now
now we consider now we consider two small element now we have to consider two small element on both side of observation point, on both side of point P या observation point both side of point P, ठीक है, both side of point P, due to which electric field at point P is determined. So we consider two small element on both side of point P on the line charge, ठीक है. लाइन चार्ज के आपने बोथ साइड दो पॉइंट्स लिए. सो टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, we have to eliminate the charge dq. this is also a charge dq. ये जो आपका चार्ज है ये dl की जगह यहाँ पे कितना है, सेम चार्ज है, dq चार्ज है. so we consider two small element on both side of point P on the line charge, ठीक है. hence to determine the electric field at point P, ये जो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज. तो ये प्लस क्यू चार्ज इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो कैसे बनेगी, अवे बनेगी. कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, अवे जाएगी तो ये इस तरह से बनेगी, ये दिस इज द अवे. फिर देखें इस पॉइंट पर, देखें तो इस पॉइंट पर भी अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज जाएगी, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज इस तरह से, ठीक है. अब ये आपका प्लेन था, जो इस प्लेन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस. ये दिस इज द प्लेन विच इज एक्सटेंडिंग अवे. सो नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे ये एंगल थीटा था तो ये सेम एंगल बनेगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. दिस इज थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा. नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट एंड दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड DE2. This is also due to the small element. Okay, this is the electric field DE1 due to this small element of charge having charge dq and length dl, and this is the electric field DE2 which is due to this small element dl. दोनों एलिमेंट जो है सेम लेंथ के हैं, सेम चार्ज इंक्लूड करते हैं और इनकी जो सेपरेशन है यहाँ से वो भी सेम है, ठीक है. सो वी कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन चार्ज एट विच, ठीक है, एट विच on the line charge at which electric field now we consider two small element on both side of point P on the line charge at which electric field can be determined. So for it electric field, the component of electric field, for it the component of electric field, so for it the component of electric field can be resolved into two segments. इसको दो सेगमेंट या दो कंपोनेंट्स में हमने रिजोल्व कर दिया. कौन कौन से दो सेगमेंट बनेंगे इसके? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 कैन बी रिजोल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. सो दिस इज
DE1 cos थीटा, DE1 cos थीटा, ये पहला कंपोनेंट आ गया। एंड दिस इज द कंपोनेंट DE1 sin थीटा, DE1 sin थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट और जिसके साथ एंगल ना बने वो साइन कंपोनेंट। सिमिलरली DE2 को भी आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो ये इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो रेजोल्यूशन के बाद, सॉरी, ये जो कंपोनेंट बनेगा आपका इधर से, ये आएगा आपका DE2 साइन थीटा। क्या आ गया कंपोनेंट? DE2 साइन थीटा। और इसका इधर पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपका क्या? DE2 cos थीटा। ये दो कंपोनेंट्स में आपने रिजोल्व कर दिया, DE1 एंड DE2। ठीक है, किस किस में रिजोल्व कर दिया? DE1 एंड DE2 इनटू टू सेगमेंट्स। फिर आगे क्या लिखेंगे? दो सेगमेंट्स में से द कंपोनेंट DE1, the component DE1 sin theta and DE1 sin theta and DE2 sin theta। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से हैं? दिस इज द DE1 sin theta and this is the DE2 sin theta are equal in magnitude, are equal in magnitude and opposite in direction, and equal in magnitude and opposite in direction, so they will be cancel out each other, so they will be cancel out each other, they will be cancel out each other। ठीक है, तो इसके कारण ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे वो ध्यान दें। क्यों हो जाएंगे कैंसिल? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या लिखते हैं? DE इक्वल टू आप लिखेंगे KQ/R², यही तो लिखेंगे KQ/R²। तो यहाँ पे DQ है, सॉरी, KDQ/R², KDQ/R², तो KDQ/R²। तो ये भी चार्ज DQ है, ये भी चार्ज DQ है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सेपरेशन चाहिए और ये सेपरेशन चाहिए। तो अगर आप ये सेपरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये R है, इसको मैंने L कंसीडर कर लिया, तो ये भी तो L होगा क्योंकि सेम हाइट पे है, सेम डिस्टेंस पर है। तो अगर ये L होगा तो ये आ जाएगा आपका रूट में R² + L², ये भी आएगा रूट में R² + L² क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE1 जो आएगा वही तो DE2 आएगा, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आ जाएंगे। और कैंसिल हो जाएंगे सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण एक्ट करेगी? सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एक्ट ड्यू टू द कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर वो कौन से कंपोनेंट के कारण एक्ट करेगी? वो केवल एक सिंपल कंपोनेंट जो है आपका कौन सा? DE1 cos थीटा एंड DE2 cos थीटा, इसके कारण एक्ट करेगी। मतलब अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज एक्ट करेगी। क्या बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? ठीक है, हेंस कैंसल आउट ईच अदर and the component and resultant electric field intensity and resultant electric field intensity resultant electric field intensity at point P act due to components DE1 cos theta and DE2 cos theta which is outward, which is away from the line charge, which is away from लाइन चार्ज। जो लाइन चार्ज से कैसे हैं? अवे हैं, दूर की तरफ हैं, तो विच इज अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, हमेशा अपवर्ड और डाउनवर्ड कंपोनेंट में एक्ट नहीं करेगी, हमेशा अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज एक्ट करेगी। ठीक है, सो नाउ अब हमको यहाँ पे क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो नाउ ये आप बातें आपको समझ आ गई जो मैंने बताई हैं, ये सारे आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम इसमें डायग्राम। ये भी आपको अगर ये पूछा जाता है तो ये आपको पहले रिप्रेजेंट करके बताना होगा, ठीक है, कि ये हमने क्यों जीरो किया या इसके क्या रीजन रहे। ठीक है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड कंपोनेंट क्यों कैंसिल हो गए, इसके क्या रीजन रहे, क्यों जीरो हो गए, और अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज क्यों एक्ट कर रही है, ये आपको सारी बातें आपको याद रखनी है। नाउ सो वी हैव टू कंसीडर अ लाइन, इनफाइनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। तो हमने क्या कंसीडर किया था, दिस इज ए लाइन, इनफाइनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज। सो नाउ वी हैव टू कंसीडर ए लाइन which is infinitely long towards both side। ठीक है, this is the line which is infinitely long towards both side। now we have to determine electric field intensity due to this line charge at having length L। L लेंथ के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इसकी। we have to determine electric field ड्यू टू दिस लाइन चार्ज एट लेंथ L या ड्यू टू लेंथ L। सो अगर आप L लेंथ के कारण यहां पे डिटरमाइन करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड एट लेंथ L। सो व्हेन प्लस Q चार्ज इज गिवन टू दिस लाइन देन इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। नाउ a point P is situated at a distance small r from the line charge at which electric field intensity is to be determined। ठीक है, this is a point P is situated at a distance t from the line charge या at a distance small r from the line charge at which electric field intensity is to be determined। ठीक है, लाइन चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको क्या करना है, इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ये प्लस Q चार्ज था, ये प्लस Q लाइन चार्ज है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिमेट्रिकली बनाया इसको। हमने कहा था कि चार्ज इज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस, तो आपने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस बना दी। एंड नाउ दिस इज ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द लाइन चार्ज। ये लाइन चार्ज से small r distance पर a point P is situated at a distance small r from the line charge at which electric field intensity is to be determined। तो ये small r distance पर this is a point P at which electric field intensity is to be determined। So now by taking r as a radius we have to form a closed surface or Gaussian surface। We consider r as a radius, we have to form a closed surface or Gaussian surface। So now we know that electric field intensity is a vector quantity and its direction is always away from the line charge। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अवे, ऐसे जाएगी, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। अब अगर ये अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज बनेगी तो हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। अब आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज आएगा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल ड्रॉ होगा एन कैप। आप अगर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये भी नॉर्मल आपका अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, अवे फ्रॉम ऐसे आएगा सर्कुलर सेक्शन पे अवे। इस वाले सर्कुलर सेक्शन पे ड्रॉ करते हो तो ये भी कैसे बनेगा, अवे। इस तरह से आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नाउ सो हमने क्या कहा, कंसीडर अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ L। ठीक है, कंसीडर अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ L। तो हम वापस से लिखते हैं इसी बात को, तो क्या लिखा, कंसीडर a line charge, consider
a line charge, consider a line charge of length small l, when plus q charge is given to this line, then it will be this line, then it will be uniformly distributed, over its length, so linear charge density length, so linear charge density, so the linear charge density, तो आपने लाइन चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था लैम्डा, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, एल लेंथ पे इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा एल, पहली इक्वेशन आ गई। नाउ a point P is situated at a distance small r from the line charge, now क्या लिखेंगे, a point P is situated, point P is situated at a distance, small r, from line charge, at which electric field intensity is to be determined, at which electric field intensity is to be determined, then by taking small r as a radius, then by taking small r as a radius, we form a closed surface or Gaussian surface, closed surface or Gaussian surface, so flux passing through the closed surface, ठीक है। तो आगे आप क्या लिखेंगे, so flux passing through the closed surface, flux passing through closed surface, तो जो क्लोज सरफेस आपने ड्रॉ किया है क्लोज सरफेस से, उससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो आप लिख पाएंगे जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दें, और जैसे ही आप इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो 3 सेक्शन बन रहे हैं, एक ये सर्कुलर सरफेस, दूसरी भी ये सर्कुलर सरफेस, और ये क्या बन रहा है, कर्व्ड सरफेस। ये जो है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस है। तो देखिए फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, तो ये हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डॉट DS1, ये पहली सरफेस ली है और इसका सरफेस एरिया मैंने DS1 कंसीडर किया है। एक और ये सरफेस ली है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे आएगी और नॉर्मल ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में जो हमने बना रखा है एन कैप, ये ई। सेम यहाँ पे भी एक आप सरफेस, इसको हमने कंसीडर किया DS2,
एक ये स्मॉल सरफेस कंसीडर करिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है हमेशा अवे जाती है, और नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे डाउनवर्ड हमने बना रखा है, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, ई डॉट डी एस वन प्लस सरफेस इंटीग्रेशन किसका, एस टू का, ई डॉट डी एस टू प्लस क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे एस थ्री का, और ये बनेगा ई डॉट डी एस थ्री। ये तीन अलग अलग सेक्शन हो गए। अब आप आगे देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम एक एक सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा फाइज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन एस वन ई डी एस वन, इस पर वेक्टर आएगा, ठीक है, ई डी एस वन। अब यहाँ पर देखो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस आर सेम इन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एस टू ई डी एस टू। अब एस टू सरफेसेस को देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो cos 90 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन एस थ्री, यहाँ पे आप लिखेंगे ई डी एस थ्री cos 90, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो देखिए cos 90 की वैल्यू आपको पता है कि देखो ये कंपोनेंट cos वाले आ गए जैसे हमने उसमें देखा था। अब आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 होती है, तो सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी S1 हो जाएगा, प्लस ये जो सरफेस है cos 90 0 और ये भी cos 90 0। तो यहाँ से फ्लक्स फाई इक्वल टू ई कॉन्स्टेंट है और सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा ds1 का। अब वी नो दैट कि सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा ds1 का, वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा 2 पाई आर एल, क्योंकि एल लेंथ है इसकी, ठीक है, इक्वल टू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, क्या कहेंगे इसको, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आपने फाइनली क्या लिखा, ये तो आपने इसको सॉल्व किया और कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर आपने लिखा यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे कहेंगे बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो कितना एनक्लोज हो रहा है, तो हमने प्लस क्यू चार्ज गिवन किया था और वही इसमें एनक्लोज हो रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो जो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है उसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ई चाहिए तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू 1/2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन ε0। सॉल्व कर लो। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 पाई ε0 इंटू क्यू अपॉन आर एल। This is the electric field intensity. Now we have to put the value of Q from equation 1. तो put value of Q from equation 1. तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट इक्वेशन में जो Q की वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी लेमडा Q इक्वल टू लेमडा एल। सो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/2 पाई ε0 इंटू लेमडा एल बाय आर एल। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से आपका एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ 1/2 पाई ε0 इंटू लेमडा बाय आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लाइन चार्ज, ठीक है। फिर देखो कई बार हम थोड़ा सा इसमें
एक चीज़ और देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, 2 लैम्डा बाय आर। और हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, तो एक और फॉर्मूला बन गया 2k लैम्डा बाय आर। So we can say that here what is electric field intensity due to line charge in inversely proportional to observation point. As the distance of observation point from the line charge increases, then electric field get decreases. अब कई बार इसमें ग्राफ बनवा लेंगे आपसे, तो ग्राफ बनवाएंगे तो ग्राफ देखिए क्या होगा। अगर आपसे कहें कि यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लीनियर चार्ज, ठीक है, this is the electric field intensity E and this is the linear charge lambda, and now we have to draw a graph between both of them, so we get a straight line. आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन होगा like this, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा because at this point electric field intensity is directly proportional to lambda, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, बात समझ आ गई। इसका लिए ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन आपको अगर डिस्टेंस में ड्रॉ करवाएं ग्राफ कि यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, सो देखिए दिस इज द डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो वी हैव टू टेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। तो अ कर्व ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, कैसे ग्राफ होगा, कर्व ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, आपको ग्राफ कर्व टाइप मिलेगा लाइक दिस, कर्व ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, ओके। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नाउ ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।